Okay. Okay, now let's start the class. Start the class. Yes, ma'am. We were doing performance appraisal. ठीक है, quickly, बहुत लंबा गैप हो गया है चैप्टर्स में, इसीलिए थोड़ा सा भूल गए होंगे आप लोग. ठीक है, let's quickly revise it and then move forward. Performance appraisal का क्या मतलब होता है? Don't talk. Performance appraisal is a systematic evaluation of your performance in the organization. Okay. Now, depending upon the nature of work and the requirements, the kind of organization, performance appraisal cycle could be 1 year or even less than that. There are various objectives why performance appraisal is carried out. Few of which is training need identification, your salary fixation, your incentive, your determination of probation period, and promotion, transfer, demotion, identifying high performance individuals, and many more. If we talk about the objectives of performance appraisal, we see that there are broadly two objectives of performance appraisal. One is the administrative objective that we just discussed, and the other one is the scope of self-improvement. Now, self-improvement is not just left to the employees, but rather self-improvement also means that, see, if you are promotion oriented, okay, if you are assistant manager and you're seeking promotion to manager, you'll seek out for all those roles and responsibilities which are there at the managerial position, right? If you are that competent, if you look out for promotion, then you will try to find out the roles and responsibilities which are there fixed in that role and try to bring it as your KRA, okay, your key result areas. Fine. So this is also one of the scopes directed towards self-improvement of the employee. In the last class, where just 2 boys were present in the class, 2 or 3 boys were present, I discussed the methods, I started rather the methods of performance appraisal. Now, when we talk about the methods of performance appraisal, quickly we'll do it. Why? Because there is a lot more strength today. और वो जानना जरूरी है, क्लास को पीछे हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे. ठीक है, methods of performance appraisal में 2 तरीके का मेथड डिस्कस किए थे हम लोग. Traditional, rest of you quickly write down. Traditional and modern. If we talk about the traditional methods, we have essay method, we have forced comparison method, we have field review, no talking, field review, we have critical incident, and essay method, and ranking, rating. Modern methods, MBO, which is management by objective. Who gave MBO? Good. Peter Drucker. 360-degree appraisal, BARS method, and assessment center.
Now we'll just revise this very quickly. Okay, ऐसे मेथड का मतलब literally ऐसे मेथड ही होता है. Okay, somebody coming like if I am supposed to write an essay on her, okay, I'll just write down she comes on time, she doesn't come on time, she is good with people or not good with people, what is her completion on time, her trustworthiness, her dependability, her accountability, things like that. ठीक है, ऐसे का मतलब वही होता है, बचपन में निबंध लिखते थे ना, गाय, हाँ गाय हमारी माता है, बस वैसा ही ऐसे होता है एम्प्लॉइज पे. ठीक. सेकेंड इज फोर्स्ड कंपैरिजन मेथड, ये लास्ट में बताएंगे. सुनो, जिसका नॉलेज ओवरफ्लो कर रहा है वो बाहर जा सकते हैं क्लास में. इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लास प्लीज कीप क्वाइट. The second one is, the third one is field review method. Field review method का मतलब फील्ड पे आके रिव्यू देना. देखो, who would know better, who would know you better, me or some other teacher who doesn't take your class? No, not me, it's you then. Okay, okay, I know you better. Why I know you better? Because I'm working on ground with you people. I know your strengths, I know your weaknesses, I know what are you dealing with, I know the discipline and various other factors related to BBA third semester because I'm taking your class. Similarly, it is believed that the supervisor of workers, आप जब फैक्ट्री का कभी सीन देखेंगे तो वहाँ एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वर्कर्स को, तो वो सुपरवाइजर ज्यादा जानता है वर्कर्स के बारे में क्योंकि रोज वो उससे डील करता है, रोज वो जानता है कि टाइम पे आता है कि नहीं आता है, रोज वो जानता है कि उसका टीम वर्क कैसा है, ठीक है, वो अकाउंटेबल है कि नहीं, कभी जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो टाइम के बाद रुकता है कि नहीं. ओके, एंड ऑल दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू दैट पर्सन. फील्ड रिव्यू का मतलब फील्ड पे आके रिव्यू करना. A person from personnel department will come down to the field where actually that worker is working and would ask the supervisor to tell him the plus and minus of that employee. This is known as field review method. Okay, next, critical incident. Critical incident थोड़ा सा अच्छे से समझ लो. critical मतलब नाजो, जब आप critical के बारे में बोलते हैं तो जनरली हॉस्पिटल दिमाग में आता है, क्रिटिकल पोजीशन, बहुत ज्यादा मूवी वो चीज इंफ्यूज कर दिया है, लेकिन क्रिटिकल का मतलब सिर्फ टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड नहीं होता है, टुवर्ड्स द गुड साइड आल्सो. ओके, सो क्रिटिकल का मतलब जैसे हम क्लास में कोई असाइनमेंट दिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो असाइनमेंट, कुछ बच्चों ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है. कुछ बच्चों ने सोचा कि ठीक है नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि कहाँ से इसको कैसे बनाया जा सकता है, कितना समझ में आ रहा है, पहले खुद समझ लेते हैं फिर बाकी मैम से पूछेंगे जाके, जितना समझ में आया उतना अपने दोस्तों को भी हेल्प करेंगे. ठीक है, क्रिटिकल, बस क्रिटिकल इंसिडेंट में ये तुम्हारा क्रिटिकल इंसिडेंट होगा. गुड क्रिटिकल इंसिडेंट की अगर आप बात करेंगे तो गुड क्रिटिकल इंसिडेंट ये होगा कि अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुमने ट्राई किया, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉल्व. कोई प्रॉब्लम होना बड़ी बात नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाए रखना बड़ी बात होती है. ओके, यू आर विलिंग टू सॉल्व इट और नॉट. दिस अप्रोच इज, क्या हो गया लास्ट बेंच, बात नहीं करो. This approach is also applicable in the organization. Okay, suppose there is a change management, थोड़ा बहुत होगा तुम लोग के HR में, ऐसे OB में पढ़ाया जाता है. Change management माने आए दिन बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं. वो चेंज इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकता है, बट no organization can choose to not change itself according to the external environment. All you're left out with the scope is to cover up that change by bringing about a change in your own organization. और change आसान नहीं होता है. जो लोग सुबह नहीं उठते, अगर वो सिर्फ सुबह उठने, अगर 5 बजे सुबह कभी उठ जाएंगे ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है. सिर्फ एक हैबिट के बारे में देखो तुम कि कितनी दिक्कत होती है.
So just think, you have been working on a certain technology for so long, okay, and suddenly the technology has changed. It's not easy to cope up in the organization. Okay, so these kinds of changes are there in the organization, and critical behavior or critical incidents are those behavior. Now ये critical behavior good भी हो सकता है, bad भी हो सकता है. Good कैसा कैसा behavior हो सकता है? तुम्हारे ग्रुप में झगड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन में और तुम उसको पैसिफाई करते हो, ठीक है, तुम सुलझाने की कोशिश करते हो ताकि टीम वर्क हैम्पर ना हो. बैड कैसा हो सकता है? जब तुमको टीम में डाला जाए तुम झगड़ लेते हो ताकि वो पूरा काम खराब हो जाए. अगर आप मार्केटिंग के एरिया की बात करेंगे तो गुड बिहेवियर क्या हो सकता है? गुड बिहेवियर ये हो सकता है कि आप किसी पोटेंशियल कस्टमर को कस्टमर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और बैड ये हो सकता है कि आप कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर लिए, एंगर इश्यूज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया. ओके, तो इस तरीके का बहुत सारा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है तो वो 80 to 85 ऐसा क्रिटिकल बिहेवियर मार्क कर लेती है और फिर वो अपने लोगों को ऑब्जर्व करती है कि वेदर योर बिहेवियर, द बिहेवियर दैट यू जस्ट डिड is counted in good critical behavior or bad critical behavior. Okay, critical behavior क्यों? क्योंकि हर कुछ तुम लोग क्लास करने आते हो, 4 घंटे 5 घंटे का क्लास होता है, क्या हर कुछ जो करते हो वो क्रिटिकल हो जाता है? नहीं. हंस रहे हो, बोल रहे हो, क्लास नहीं है तो हल्ला कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन क्लास के समय में हल्ला करोगे तो वो क्रिटिकल बिहेवियर है. मारपीट करके किसी का सिर फोड़ दोगे तो वो क्रिटिकल बिहेवियर है. जो रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है कि वो फॉलो करना है स्टूडेंट्स को, वो नहीं फॉलो करोगे वो क्रिटिकल बिहेवियर है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आया उसको सॉर्ट आउट किए वो क्रिटिकल बिहेवियर है. कोई इवेंट हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो वो क्रिटिकल बिहेवियर है. Everything that you do is not counted in critical behavior. Critical माने which affects the organization. So for the same purpose, 80 to 85 critical behaviors are marked out by the people in the people who are performing performance appraisal, and then each and every employee's behavior is counted to know whether his or her behavior falls in which category of critical incident. Okay. Next, ranking method. Ranking method is very simple. It's just irrespective of which department you belong to, irrespective of which designation you belong to, you just rank like 1, 2, 3, 4, 5. Suppose there are 100 people in the organization, everyone will be ranked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like that. That irrespective of which department you are in and which designation you are in. Okay. Next is rating method. Rating you all have done. Zomato की रेटिंग करते होंगे, पैंटालून्स में रेटिंग करते होंगे, ओला में रेटिंग करते होंगे, ऑनलाइन रेटिंग करते होंगे फ्लिपकार्ट पे. ठीक है, अगर जोमेटो की रेटिंग की बात करें तो वहां रेटिंग का पैरामीटर होता है ना, एक डिलीवरी बॉय के ऊपर होता है, एक तुमको रेस्टोरेंट का फूड कैसा लगा उसके ऊपर होता है, और एक जोमेटो की अपनी सर्विस के बारे में होता है. उसके बाद भी अलग से कॉलम दिया रहता है कि भाई कोई ऐसा ही इशू है जो वहां मेंशन नहीं है तो उसमें तुम अपना ग्रीवेंस डाल दो. ओला में रेटिंग कैसे किया जाता है? अगर तुम्हारी राइड कैंसिल हो गई, बुक राइड, तो वो 10 सवाल लिस्ट कर देता है. क्या ड्राइवर ने आने से मना कर दिया? राइट? क्या तुमने शॉर्टर एक्सपेक्टेड, डिड यू एक्सपेक्ट शॉर्टर वेटिंग टाइम? क्या तुमको लगा था कि कम देर के लिए वेट करना होगा, जल्दी से ओला लेके अपना काम कर लेंगे, और वो 16 मिनट्स दिखा रहा है तो तुम्हारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा इसलिए तुमने कैंसिल कर दिया. ओके, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. सिमिलरली रेटिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 पैरामीटर डाल दिया जाता है. जैसे तुम्हारा मेंटल स्किल, तुम्हारे जॉब में मेंटल स्किल कितनी रिक्वायर्ड है? स्वीपर का जॉब, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट जॉब, उसमें मेंटल स्किल कुछ नहीं चाहिए ना. हाउसकीपिंग का जॉब, उसमें मेंटल स्किल चाहिए. मैनेजर का जॉब, मेंटल स्किल चाहिए ना. तो इसीलिए अलग अलग जॉब का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, उसका पैरामीटर अलग अलग डाला जाता है. लाइक योर रेगुलरिटी, योर अकाउंटेबिलिटी, हाउ डिपेंडेबल यू आर. डिपेंडेबल माने हमारे घर में भी लोग होंगे ऐसे ना जिनको काम बोल के निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है. तुमको लगेगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा, और लास्ट में वो टेंशन तुम लिए रहोगे अपने सर पे, नहीं किया तो हमको करना होगा. होता है ऐसे लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं.
काम अलॉट कर दिया, फिर भी तुम ये मैनेजर बेफिक्र नहीं हो सकता है कि जिस दिन लास्ट डिलीवरी करना है प्रोजेक्ट का उस दिन वो अपना काम खत्म करके दे देगा। तो क्या होता है कि वो उसका भी टेंशन लिया रहता है। और लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काम देके वो उसकी क्वालिटी होती है, इनहेरेंट पर्सनालिटी क्वालिटी होती है ये, कि तुमको अगर कोई काम एलोकेट किया गया है तो जिसने एलोकेट किया वो फ्री हो जाएगा कि इसको बोल दिया तो काम हो जाएगा। होते हैं ऐसे लोग। सेम the same thing holds true in the organization also. Talking about regularity, अभी का जो सिनेरियो बिजनेस में चल रहा है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से भी थोड़ा सा ज्यादा प्रिफर्ड वैसे लोग हैं जो छुट्टी कम लेते हैं, ठीक है, और रेगुलर है। थोड़े से कम इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट वाले से होंगे लेकिन रेगुलर, ताकि वो जो काम का एक लैग बनता है बार बार एब्सेंट होने से, वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। ओके डन। इतना हम सिर्फ इसीलिए रिवाइज किए, सब हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, तुम थे ना, ठीक है। इतना हम इसलिए किए क्योंकि फिर आगे का वो पूरा गायब हो जाएगा तुम लोग का। ओके ये हो गया। अब देखो, क्योंकि इस मेथड्स को ट्रेडिशनल मेथड्स कहा जाता है, there must be something which is lacking in the traditional methods, that's why we moved on to the modern methods, right? Business evolve कर रहा है, business dynamic, it's not static. Now if the business will change, the dynamics will change, the way people will work will change. So how can you keep judging the people on the same parameter as you've been doing it 10 years back? The requirement of business has changed, no? तुम लोग को आफ्टर सेल सर्विसेज फील होता है, कोई कपड़ा खरीदते हो, फोन नंबर ले लिया, तुम्हारा बर्थडे विश कर रहा है, तुम्हारा एनिवर्सरी विश कर रहा है, घड़ी खरीद लो टाइटन से, उसके बाद देखो बिल्कुल तुमको स्टॉक करता रहेगा वो, राइट? कि आफ्टर सेल सर्विसेज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, कि तुम एक कस्टमर हो तो तुम उसी के तरफ लॉयल बने रहो। Have you seen the change in behavior of people who are serving, especially in the service sectors? Can you see that? उनकी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड होती है कि अगर आपके एंड से कोई प्रॉब्लम भी होता है, वो अटमोस्ट कोशिश इस बात की करते हैं कि उनका कस्टमर लूज ना हो। It's a part of their training. They'll not lose temper. Air hostess, उसकी ट्रेनिंग देखो ऐसी होती है, कोई कितना भी बेकार पैसेंजर बैठ जाए, but they not lose their calm. Excuse me sir, excuse me ma'am, this is not our protocols. क्यों? अगर वो मिसबिहेव किया, तुम ये नहीं सोच के उतरोगे कि कोई एक बंदा उसका स्टाफ अच्छा नहीं होगा, उसने बिहेव किया। तुम्हारा टोटल एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? इंडिगो के एयरलाइंस में ऐसा होता है। हम एक बार इंडिगो के एयरलाइंस में गए थे, मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर दिया, बोलोगे ना यही बात? किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर वेटर तुम्हारे साथ थोड़ा भी मिसबिहेव कर दे, माने ढंग के इसमें थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर दे, तुम ये थोड़ी सोचोगे गलत स्टाफ हायर कर लिया होगा, कोई कोई तो होता है ना वैसा, तुम बोलोगे इस रेस्टोरेंट में हम गए थे और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, आई विल नॉट गो टू दिस रेस्टोरेंट अगेन। ओके, जब बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है बिजनेस में, तो बिहेवियर रेटिंग करने का तरीका भी तो बदलेगा, बदलेगा ना। तो फिर हम पुराने मेथड से ही तो नहीं चल सकते। अगर तुम इन मेथड्स को देखो, ऐसे मेथड, ऐसे लिखना है, हम ऐसे तो, अब हम प्रत्यय और अभिनव के बारे में अगर ऐसे लिखें, ये कंप्लीटली जजमेंटल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अटेंडेंस हम काउंट करके बता सकते हैं कि प्रत्यय का ज्यादा है या अभिनव का ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये लिख दें कि प्रत्यय हैज बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स देन अभिनव, और अगर ट्रूथ में ये ना भी हो तो हमको कौन क्वेश्चन करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, राइट? सो ऑल दीज मेथड्स आर मोस्टली सब्जेक्टिव। जो तुमको रेट कर रहा है उसकी अपनी जजमेंट कैपेसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो ये तो बायसनेस हो जाएगा, थोड़ा बायसनेस होने का चांस है, क्योंकि मैनेजर का बहुत तरीके से फेवरेट हो सकता है, उसको कोई कास्ट से प्रॉब्लम हो सकता है, उसको किसी रीजन से प्रॉब्लम हो सकता है, उसको किसी, देखते नहीं हो, कोई बहुत ऊंचे पद पे बॉस है तो उसके अगेंस्ट तो आप ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, तो उसके लिए तो अच्छा ही बोलना है,
हो सकता है कि वो ना हो वैसा, राइट। इसमें हेलो इफेक्ट हो सकता है। हेलो इफेक्ट माने एक नेगेटिव चीज को लेके उसके, एक नेगेटिव नहीं, हेलो इफेक्ट। रामायण महाभारत देखे हो? रामायण महाभारत में क्या होता है, जब भगवान को कहीं से निकलता हुआ दिखाया जाता है तो उनके पीछे एक चक्र होता है, उस चक्र में बहुत लाइट होती है। उस लाइट से क्या होता है, एज अ व्यूअर बताओ जरा सर। अट्रैक्शन जाता है, और एक चीज होती है, बोलो अनमोल। इमेजिनेशन। नहीं, तुम कुछ और स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे, तुम कुछ नहीं देख पाओगे। तुम ये चीज नोटिस करना, बगल में 2-3 कैरेक्टर और खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारा सारा योर एंटायर फोकस विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द भगवान। वो उसी लिए किया जाता है कि आपके दिमाग पे इम्पैक्ट इतना भारी पड़ जाए उस चीज का कि आप और कुछ नहीं देख सकते। इसको हेलो एरर कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो एरर माने मतलब हमको अगर पता चले कि ये लड़की एक करोड़पति बाप की बेटी है और उसके बाद हमको कुछ दिखेगा ही नहीं कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकती है कि नहीं आ सकती है ठीक से, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आई है, ठीक है, वो रेफरेंस मार्केट में किसी बहुत बड़े आदमी का है, और उसके बाद वो कितनी भी इनकॉम्पिटेंट हो शायद हम नजरअंदाज कर देंगे उस बात को, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई एक कैरेक्टर उसका इतना भारी पड़ चुका है कि हम किसी और चीज को नहीं देख सकते। और जैसे हम एडमिशन लेते वक्त ये मान ले हेलो इफेक्ट में आप ये देखे होंगे कि कुछ लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी, ठीक है, लेकिन कंटेंट नहीं होता है उसके अंदर, सब्सटेंस नहीं होगा। और हिंदी मीडियम से आए हुए लड़के और लड़की भी अगर बोलने आए तो लगेगा कि कुछ बोल रहा है, इसकी बात सुने, एक दम है इसमें, जिस सब्जेक्ट पे ये बात कर रहा है उस पे ये डील कर रहा है, इज नॉट टॉकिंग नॉनसेंस ऑन दैट सब्जेक्ट। अब हम अगर ये मान लें कि नहीं, सिर्फ कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के लड़कियां या सिर्फ जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं वो ही मेरे बिजनेस में अच्छे हैं, या आई एम जस्ट कैरिड अवे बाय दैट ट्रेट ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है इसलिए बहुत स्मार्ट, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट, तो ऐसा है क्या? नहीं होता है ना। तो ये सब हेलो इफेक्ट होता है कि तुम्हारा कोई एक ट्रेट इतना हावी हो जाए मेरे ऊपर कि हम बाकी चीज ना देख पाए। ये सब एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एरर्स लिख लो, सिर्फ नाम लिख लो। देखो, एरर्स इन ट्रेडिशनल मेथड्स, नंबर 1 हेलो इफेक्ट, हेलो एरर, हेलो एरर। नंबर 2 लिखो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। आज नहीं लगता है कि मॉडल मेथड्स टच कर पाएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, देखो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, ये एरर है, तुम लोग एरर पढ़ रहे हो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या एरर होता था जिसकी वजह से हम न्यूअर मेथड्स की तरफ मूव ऑन किए। देखो, अगर मुझे ये बोला जाए कि तुम लोगों के बारे में बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके, माने बीबीए थर्ड सेमेस्टर के क्लास का परफॉर्मेंस अप्रेजल शिल्पा मैम करेंगी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको कि हम पर्सनली जानते हैं, पर्सनली इन द सेंस कि वो बहुत वोकल हैं तो क्लास में सब जानते हैं, स्टाफ रूम में उन बच्चों का डिस्कशन होता है, सो यू नो द कॉलेज नोज देम मोस्टली, गुड भी और बैड भी, ये भी है। लेकिन एवरेज से ज्यादा तो वैसे बच्चे ना जो थोड़े रिसेसिव होते हैं क्लास में, उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं मे बी, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है ना, वो अपना पढ़ाई करते हैं, वो फॉलो अप लेते हैं, घर में जाके पढ़ते हैं, उनका फोकस है मे बी बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है या कुछ वैसा है, तो हम पर्सनली नहीं जान पाए होंगे उनको। अब मुझे अगर बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला जाए अप्रेजल, जिसपे कि इतना सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तुम्हारा ट्रांसफर, प्रमोशन, पैसा, इंसेंटिव, एवरीथिंग,
तो तुमको नहीं लगता है कि हम बीच का रास्ता क्या अपनाएंगे? अच्छा मान लो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग पेपर सबमिट किए, ठीक है, एग्जाम दिए, उसका पेपर सारा डिस्क्रिप्टिव आंसर है और उसका मेरे पास ढेर सारा पेपर है, ठीक, मेरे पास टाइम नहीं है, हम पर्सनली तुमको जानते नहीं है कि आंख बंद करके तो बोलने के लिए नहीं है बच्चा ठीक है तो ठीक ही, एवरेज एवरेज ठीक ही लिखा होगा। तुमको नहीं लगता है कि उसमें बहुत सेफ रास्ता ये होगा कि एवरेज मार्किंग हो जाए? होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज को भी ब्रेन किया जाता है एवरेज मार्किंग देने के लिए, होता है कि नहीं होता है? उसमें हम बचेंगे कि किसी को 100 मार्क्स ना दे दें। क्यों? क्योंकि फिर मेरे पे क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसा भी क्या लिखा है पेपर में कि 100 आ गया, और हम 0 ना दे दें कि भाई क्या हो गया जो इसको फेल कर दिए, ठीक है, तब क्वेश्चन हो जाएगा। तब जो अप्रेज करता है ना उसके बीच का रास्ता होता है कि उसको एवरेज मार्किंग करते हैं, इसी को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है ना वो फ्री नहीं रहता है, वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आया बाकी साल वो वेला है, वो आदमी अपना काम करता है और टाइम टू टाइम अप्रेजल दिया जाता है। उस अप्रेजल में हो सकता है वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हो, उसको टाइम नहीं है, वो पर्सनली नहीं जानता हो एम्प्लॉयज को, कोई नया एम्प्लॉय आया हो, तो इसमें क्या करता है वो सेफ खेलता है ना, वो किसी को बहुत ज्यादा रेटिंग देता है हाई। क्यों? अगर बहुत हाई देगा तो उसकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ानी होगी, सैलरी इज अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऊपर वाले उससे पूछेंगे कि इतना क्या रेटिंग दे दिया भाई, क्या हो गया इस एम्प्लॉय में, कितना पैसा हमको देना पड़ रहा है। ना हम उसको बहुत खराब देंगे कि अगर भाई लगेगा ना कि इतना खराब दे देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगा, तो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ जस्ट मेकिंग इट सेंट्रल, बीच में ग्राफ में एवरेज मार्किंग करने के लिए, ठीक है। अब इस एवरेज मार्किंग के तो लपेटा गया वो भी जो बहुत साइन करो, पास पीछे पास करते जाओ, हल्ला नहीं होना, इसको साइन करते। इस एवरेज मार्किंग में तो वो भी लपेटा गया जो बहुत अच्छा परफॉर्मर होगा, है ना, एग्जाम नहीं होगा सबका एवरेज मार्किंग हो जाएगा, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं, ऐसे तो एग्जाम देते तो फेल तो कर ही जाते, कम से कम पास तो हो जाएंगे एवरेज में। सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, ये क्या बगल वाला साल भर पढ़ा नहीं, इसको भी आ गया 80 और हमको 90 दे, होता है। तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है परफॉर्मेंस में, आप साल भर ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत किए, आपका पैसा इस पे डिपेंड करता है, आपका प्रमोशन इस पे डिपेंड करता है, और उसमें रेटिंग आपको एवरेज मिल जाए क्योंकि एक एरर चल रहा है, तो दैट्स नॉट फेयर। ओके, कितना रिलेट करिए तुम लोग, एकदम अंदर से निकल के बाहर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट एरर लिखो, recency. Number 3, recency. Number 4, privacy. Recency, R-E-C-E-N-C-Y. Privacy, P-R-I-M-A-C-Y. Recent मतलब अभी का, प्राइवेसी माने पहले का, ठीक। ये दोनों ही एक तरीके का एरर है जो कि ह्यूमन जजमेंट पे, परसेप्शन पे डिपेंड करता है। साल भर तुम ये देखोगे ऐसे ना, चालू एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको ये लगता है कि भाई अप्रेजल का टाइम आ रहा है, आप बैठो 9-9 बजे तक और मैनेजर को दिखाओ कि हम 9-9 बजे तक बैठ के यहाँ पे ओवर टाइम काम कर रहे हैं, खूब होता है। तो ये एरर बनेगा, 9 महीने तुम क्या काम किए ऑर्गेनाइजेशन में उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, लास्ट 3 महीने हम देखेंगे कि भाई तुम तो बहुत काम किए, तुम्हारी रेटिंग हम हाई कर देंगे, दैट इज एन एरर। प्राइवेसी, इसके साथ एक प्रोवर्ब जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुमने शुरू में कुछ बकझक कर लिया, मान लो कुछ हो गया, किसी काम को डिनाई किया, अब तुम्हारा परसेप्शन ही बन गया वैसा ऑर्गेनाइजेशन में कि ये काम डिनाई करता है, इसको जो सीनियर काम देते हैं
डेलीगेट करते हैं, वो ये रिफ्यूज किया था, तो किया था तो एक बार किया था, उसके बाद उसने बहुत मेहनत की। गॉट इट? सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एरर कि हमने एक बार इंप्रेशन बना लिया शुरू में कि कैसे क्या कैसा है ये इंडिविजुअल, अब वो कुछ भी करे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक परसेप्शन बना लिया उसका। गॉट इट? नेक्स्ट एरर लिखो, मिसलेनियस बायस। मिसलेनियस बायस मिसलेनियस का स्पेलिंग लिखना होगा, है ना? BIAS नहीं, मिसलेनियस माने बचा बचा इधर उधर का, एक्स्ट्रा, बायस मतलब प्रेजुडिस। क्या? देखो हम लोग कितना भी सिस्टम बना लें, कितनी बार ऐसा होता है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में। यू वर्क इन अ टीम, you work in close contact with your manager and with your teammates, okay? So in that case कितना भी आप सिस्टम में से इस लूप होल को हटाने की कोशिश कीजिएगा कि किसी पर्सन का सब्जेक्टिव जजमेंट आपके बारे में ना आए, still there are huge chances of subjective judgment to creep in. For example, miscellaneous bias में क्या आएगा? जैसे देखो, अगर मानो कि हम कोऑर्डिनेटर हैं BBA थर्ड सेम, ठीक है, ये एक कंपटीशन जैसा होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा, किस डिपार्टमेंट के लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। सपोज आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ BBA थर्ड सेमेस्टर, समवन एल्स इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ BCom, ओके? अब अगर ये एक एक स्टेटस की बात है, तो और हम तुम लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हैं, तो हम ये क्यों चाहेंगे कि बाकी डिपार्टमेंट से मेरे बच्चों का मार्क्स खराब हो? इसका मतलब ये मेहनत नहीं कर रहे, इनको सैलरी कम मिले। व्हाई वुड आई वांट दैट? क्योंकि आपके अप्रेज तीनों मिलके पेपर साइन कर रहे हो। ये अप्रेजल मेथड, ठीक है? व्हाई वुड आई वांट कि कोई ये बोले कि नहीं BBA थर्ड को कम सैलरी मिलनी चाहिए? हम भी चाहेंगे, हम मैनेजर है तो मेरे टीम को ज्यादा पैसा मिले। सो उस केस में कभी कभी क्या होता है ना, वो थोड़ा बायस्ड हो जाता है, नहीं खराब रेटिंग देता है ताकि उसका डिपार्टमेंट ऊंचा रहे ऑर्गेनाइजेशन। और मिसलेनियस बायस में क्या होगा, जैसे मान लो आई एम वेरी सीनियर, आई एम AGM एंड यू आर सीनियर मैनेजर। AGM काफी बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन सीनियर मैनेजर भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उसमें सारा काम करना होता है, लीडरशिप भी, मोटिवेशन भी, एवरीथिंग। काफी लोगों को वो मैनेज करते हैं सीनियर मैनेजर। अब अगर हम इसको खराब रेटिंग दे दें, मतलब अगर हम इसका अप्रेजल खराब कर दें, तो इसका एक मतलब तो ये भी हुआ ना कि मेरी लीडरशिप में ये ग्रो नहीं कर रहा है। वो इसका ये मतलब कि हम इसको काम जो सिखा रहे हैं उसमें ये ग्रो नहीं कर रहा। हम क्यों चाहेंगे ये कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए? इन दैट केस ये लोग ऐसा नहीं करते हैं कि रेटिंग खराब कर दें। प्लस देखो, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऐसे ही ठीक ठाक रेटिंग दे दी जाती है क्योंकि पोस्ट और पोजीशन का रुतबा होता है, ठीक है? और नेगेटिव मिसलेनियस बायस की अगर बात करोगे, देयर आर मैनेजर्स जिनको एक पर्टिकुलर कास्ट से प्रॉब्लम होता है, जिनको एक पर्टिकुलर रिलीजन से प्रॉब्लम होता है, जिनको एक पर्टिकुलर रीजन से प्रॉब्लम होता है। हम कितना भी बोले, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये जैसे आप कई बार होगा कि आपकी टीम अगर साउथ इंडियन है तो एक नॉर्थ इंडियन को थोड़ा कम पसंद किया जाता है। दैट इज अ फैक्ट। Okay? Casteism is a fact, is a reality. Regionalism is a fact. Okay? Post and position is a fact. Gender is a fact. ये बहुत बार ये बात बोली जाती है कि women
मैनेजर्स को टॉप मैनेजरियल पोजीशन ऑफर ही नहीं की जाती हैं, उनको किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाता है, कुछ ना कुछ वैक्यूम लगा के, ताकि वो सीईओ ना बने, एमडी ना बने। क्यों? क्योंकि दैट इज अगेन अ फैक्ट, पीपल डोंट वांट वुमेन टू ग्रो इन सोसाइटी। होता है ये चीज, नहीं देख सकते हैं लोग बढ़ते हुए। गॉट इट? तब अप्रेजल खराब करेंगे। आप और भी बहुत सारी बात होती है, जब नौकरी में आओगे तो समझोगे, किसी को कुछ फंसाना होता है तो उस पर कुछ ना कुछ का केस लग जाता है, तब तुम्हारा अप्रेजल नहीं मिलेगा, तब तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। ओके, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा यूज होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। What's the time? We still have time? Okay. So we'll start. इतना समझ में आया? Yes. Performance appraisal समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अगले क्लास में बताओगे? है ना? That's good. दोनों खड़े हो तो? खड़ो जल्दी। Today we'll do only one method, which is MPO नहीं। इतना हो गया ना लेक्चर मेथड, अब एक इंटरेस्टिंग सा ये पढ़ा देते हैं, 360 डिग्री आज पढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बनाओ डायग्राम। फोर्स कंपैरिजन, अच्छा छूट गया, ठीक है। फोर्स कंपैरिजन में क्या होता है, यही एवरेज वाला सिस्टम को हटाने के लिए ये फोर्स कंपैरिजन किया जाता है। फोर्स कंपैरिजन का मतलब है एक ग्राफ बनवाया जाता है, एक ग्राफ जैसा बनवाया जाता है, रेटर को दिया जाता है। अब मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज है, मान लो सबका इंडिविजुअली रेटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। You know, this method is useful for the organizations which have large number of employees. Forced comparison, यानी रेटर को फोर्स किया जाता है कि आप फोर्स्ड कंपैरिजन नहीं है वो, सॉरी उसको ठीक करो, वो है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको डिस्ट्रीब्यूशन, रेटर को फोर्स किया जाता है कि आप मेंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तभी तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़ा प्रोजेक्ट किसको देना है, वो छोड़ के जा रहा है तो किसको रोकना है, ट्रांसफर किसका करना है, डिमोट किसको करना है। ठीक है, तो इसमें होता ये है 40% एम्प्लॉइज को एवरेज दे दिया जाता है, ठीक, एक 20% एम्प्लॉइज को अबव एवरेज और 10% को आउटस्टैंडिंग। कितना हो, 40, 50, 60, 70, ठीक। 20% को बिलो एवरेज और 10% को पुअर, ठीक। अनमोल बताओ जरा, 1000 का 40% कितना होता है? गुड, 400 एम्प्लॉइज को एवरेज में डाल दिया जाएगा, समझ गए? कितना है यहाँ? 200 को अबव एवरेज, 100 को आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे एम्प्लॉय है ये। सही रहता है, 200 और बिलो एवरेज और ये 100 पुअर, इनका क्या किया जाना है वो देखेंगे, ठीक। यही होता है फोर्स कंपैरिजन कि आप, हाँ सॉरी, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ में आ गया? क्रिएटर को फोर्स किया जाता है कि आप इतने लोगों को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कम से कम इस तरह तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब बनाओ 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। नाम का क्लास था क्या, तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो? एम्प्लॉई, बीच में एम्प्लॉई, 360 डिग्री माने 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 90 90 90 90 हो जाएगा। एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक। एम्प्लॉय सेल्फ
एग्जाम के नीचे लिखना फिगर 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब धीरे धीरे जो मेथड्स पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर और उसका जजमेंट कैसे चेंज होता है और मार्केट में उस चीज को कैसे अब इंटरप्रेट किया गया है। देखो 360 डिग्री अप्रेजल मेथड एक बहुत अच्छा बिहेवियरल चेक है। आपने अभी तक जितने मेथड्स पढ़े सब में आपने देखा होगा कि आपका सुपीरियर आपको जज करता है सब में, पूरे ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ तुम्हारा सुपीरियर ही तुमको जज करता है। नाउ वी कम टू अ पॉइंट वेयर एन एम्प्लॉई इज जज्ड फ्रॉम ऑल राउंड। उसके आसपास ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों के साथ वो काम करता है सब उसका रेटिंग करते हैं। सोच लो पहले कैसा होता था, सिर्फ बॉस को खुश रखो मेरा अप्रेजल होगा। हमको जूनियर से क्या मतलब है, बगल में बैठा है उससे हमको क्या मतलब, लेकिन अब मतलब है। बिग कंपनीज इन द इंडस्ट्री राइट नाउ लाइक Infosys, like Wipro, like General Electrics, like Crompton Greaves, Thomas Cook, these all big companies are using 360 degree appraisal method. Okay? इस मेथड में क्या होता है, इसकी रेटिंग एम्प्लॉय के ऊपर कौन बैठा होता है, नीचे बगल में साथ में पेयर्स माने साथ में काम करने वाला, इधर सेल। This is a wonderful appraisal method where you are given an opportunity to appraise yourself. Why? तुमसे अगर हम ऑनेस्टली वीकनेस, देखो ये ध्यान रखना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कोई नोटिस नहीं होता है जिसको बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि हर एम्प्लॉय को अलग अलग पैसा मिलता है और पैसा किसको क्या मिला ये कॉन्फिडेंशियल इशू है कि किसकी सैलरी कितनी है, राइट? तो अप्रेजल का जो ये फॉर्म होता है जो भरा जाता है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ एम्प्लॉय जानता है और जो अप्रेज करता है वो जानता है। ये माना जाता है अगर हम तुम लोग को भी ये बोले कि ये सिर्फ हम देखेंगे कि जो तुम लिख रहे हो और हम तुमको बोले कि प्लीज राइट योर ओन वीकनेसेस, बहुत फेयर चांस है कि तुम लोग ऑनेस्टली लिख दोगे, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि एन एम्प्लॉय इज हिज ओन बेस्ट क्रिटिक, plus this self appraisal will also help the person who is appraising, who is of a managerial rank, to know what are the career plans and what are the aspirations of a person for his career planning. ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम जितना लिख दोगे उतना ही उतनी करियर अपॉर्चुनिटी शायद तुमको ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए, लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए एक डेटा की तरह और शायद मिल जाए, इसलिए सेल्फ अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है because it is firmly believed that an employee is his own best critic. Sometimes the manager might overlook what is good in you, but you will never overlook what is good in you. आप अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेंगे ना, इसलिए एक सेल्फ अप्रेजल का स्कोप है। और ये सब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर से। क्वेश्चनर समझते हो क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसको फॉलो करता हुआ 2, फिर उसको फॉलो करता हुआ 3, इस तरीके का क्वेश्चनर ड्राफ्ट किया जाता है कि वो बहुत इफेक्टिवली आपसे आपका सारा इंफॉर्मेशन निकाल लिया जाएगा।
ओके, सर्वे वगैरह होता है तो देखते हो क्वेश्चन भरवाता है तुम लोग से, तो वो क्वेश्चन से कलेक्ट किया जाता है ये इन्फॉर्मेशन। देन यू हैव पेयर्स। पेयर्स माने साथ में काम करने वाले। साथ में काम करने वाले का क्या मतलब हुआ? ऐसे नहीं कि रैंडम कोई जो तुम्हारे बैच में सिलेक्ट हुआ उससे पूछ लेगा तुम्हारे बारे में। जिसके साथ तुम क्लोज एसोसिएशन में काम करते हो उससे इंफॉर्मेशन लिया जाएगा तुम्हारे बारे में। क्या इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है तुम्हारे साथ वाले के साथ, बताओ? हाँ, कोई लेके, लेकिन क्या? हाँ ठीक है, केयरलेस नहीं है, और बिहेवियर, टीम वर्क कैसा है, हाँ, हेल्पफुल है कि नहीं, या अगर कुछ समझ में आ गया तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है बाकी नहीं। ओके, सो पेयर्स भी बहुत कुछ चीजें, पेयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना एचआर में और पढ़ना शुरू करोगे ना, डाइवर्सिफाई करोगे, और तुमको पता चलेगा ग्रुप, पेयर ग्रुप, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तुम खुद सोचो ना, तुम अगर किसी 4 लड़के के साथ ऐसे रह लो जो बहुत पढ़ने वाला लड़का हो, उसके साथ अगर तुम मीडियोकर हो तो फेयर चांसेस है कि तुम अच्छे हो जाओगे, और अगर तुम मीडियोकर हो और 4 पुअर लड़कों के साथ हमेशा रहते हो, बहुत फेयर चांस है कि बहुत जल्दी तुम पुअर हो जाओगे। ये फैक्ट है। यू आर नोन बाय योर पेयर ग्रुप, दिस इज ट्रू। ओके, सो पेयर ग्रुप का भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट होता है। कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आपके बगल वाले समझाते हैं आपको देयर इज समथिंग पॉजिटिव हियर आल्सो। अंडरस्टूड? सो पेयर से टीम वर्क, बिहेवियर, शेयरिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, एंड द अदर थिंग्स इज आल्सो टेकन कि तुम्हारा कैसा बिहेवियर। पहले कैसा था? पेयर ग्रुप से कौन पूछता है, बस बॉस को खुश रखो, राइट? अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा साथ वाला है, कोई तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया और तुम डिनाई कर दो, तो ये तुम्हारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वही काम पूछ रहा है ना तुमसे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्टेड है कि नहीं? यहाँ कोई नए फैकल्टी आ जाए अभी और वो पूछे कि कैसे कैसे क्लास चलता है, आप थोड़ा समझाइए, कैसे लिया जाता है, क्या अटेंडेंस है, क्या है इसका सिस्टम, और हम बोले नहीं हमको क्या मतलब है, अपना देखो जहाँ जैसे क्या करना है। इससे क्या होगा? काम हैम्पर होगा, इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट होगा, और ये चीज मेरा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द एजुकेशन एज ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? यस मैम। नेक्स्ट, सुपीरियर। सुपीरियर तो जानते ही हो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब ट्रेडिशनल में पढ़े। सुपीरियर तुमको रेट करता है, इसका वेटेज अलग होता है। नाउ what makes 360 degree very interesting is the addition of subordinate। तुम्हारा जूनियर भी तुमको रेट करेगा। जूनियर क्या क्या रेट कर सकता है? किन किन मैटर्स पे जूनियर से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है तुम्हारे बारे में? सपोर्टिव है कि नहीं, बोलो। बिहेवियर एंड डेलीगेशन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ वर्क काम कैसे करता है? अब देखो, नारायण मूर्ति तो नहीं आएंगे ना देखने के लिए कि सिस्टम इंजीनियर कैसे काम कर रहा है इंफोसिस में, नहीं आएंगे ना, वो तो नहीं आते वो कभी। हर हायरार्की का इंपॉर्टेंस है इंफोसिस को वहां तक पहुंचाने में। ओके, पीयर ग्रुप का क्या मतलब है? अब हमने हायर किया है कि किसी का स्ट्रेंथ कुछ और है, स्किल कुछ और है, हम मैनेजर है उसको कुछ उल्टा ही पकड़ा दिया और बोले कि करो करो वरना तो तुमको हम इनएफिशिएंट बोल देंगे। तो ऐसा नहीं है ना, डेलीगेशन ऑफ काम डेलीगेट करना सबके पास की बात नहीं होती है। क्या आप ऐसे भी घर में भी देखिएगा, जैसे मम्मी लोग काम डेलीगेट नहीं कर सकती है, वो खुद ही कर लेंगी उठ के। 2 मिनट अगर तुम नहीं किए उसके बाद she'll just walk up and do it herself, होता है कि नहीं? Jokes apart, delegation of responsibility is not that simple। इसके लिए भी स्किल चाहिए और मैनेजर की रेटिंग होती है इसकी वजह से। कम्युनिकेशन, तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, क्योंकि अगर तुम ठीक से इंफॉर्मेशन पास नहीं करोगे ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम्हारे ग्रुप में मैसेज नहीं आता है तो कंफ्यूजन होता है ना, इस मैम को मैसेज करोगे, उस मैम को मैसेज करोगे, खुर्शीद सर को मैसेज करोगे, कंफ्यूजन, टाइम गया उतना। ठीक है, तुम वो टाइम किसी और चीज में इंप्लीमेंट कर पाते अगर ऐसा होता है तो।
तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम वेस्ट होता होगा। तुमको कोई काम करना है और उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई गोल है, तुमको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो कम्युनिकेशन, डायरेक्शन, delegation of responsibility, how good that manager is in managing the teamwork, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है 360 डिग्री अप्रेजल। समझ में आया? लगभग 15 लोगों का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिसमें से कि 6 जूनियर होते हैं और सेल्फ तो सेल्फ भी है, बाकी जो बचा हुआ 9 है वो इस दोनों में डिवाइडेड हो जाता है, समझे। और पीयर्स को उसको लिया जाता है जो तुम्हारे साथ क्लोज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ताकि वो तुम्हारे बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके। अंडरस्टूड? इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है? जल्दी से डिस्कस करो इसका लूपहोल। बहुत सही। पीयर ग्रुप में इन दोनों का झगड़ा है, हम इससे पूछेंगे वो कैसा है, बता देगा वो कैसा है, बता देगा ना। समझ गए? सिंपल। पीयर्स ग्रुप में पर्सनल राइवलरी निकल के आएगी, या तो स्टूडेंट हो, सोचो जहां पैसा इन्वॉल्व है, जहां प्रमोशन इन्वॉल्व है, वहां कितनी राइवलरी निकल के आती होगी। क्यों तुम बगल वाले की तारीफ करोगे जब तुमको पता है कि तुम उसके राइवल हो और प्रमोशन में वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, राइट? और कोई प्रॉब्लम? Informal partnership, हाँ, but there's a major problem here. I wonder कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। बोलो बोलो, पेटेंट ट्रायल करो कम से कम। हर्ष, तुमको नहीं लगता है कि जूनियर अगर तुमको रेट करेगा तो थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन होगा? जैसे हम ना चाहते हुए सुपीरियर को झुक के रहना पड़ेगा इसके वजह वो भी रीजन है। दूसरी बात देखो, वो भी रीजन है। दूसरी चीज, जूनियर से रेट किया जाना थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है। अब अगर हम सोचो कि अगर तुम्हारे हाथ में मेरा अप्रेजल हो तो हम तो किसी को डांट ही नहीं सके, फिर तो बदला निकाल लोगे उस समय, राइट? दिस इज ह्यूमन नेचर ना, राइट? अंडरस्टूड दैट? एंड जो सीनियर होता है वो किसी कारण से सीनियर होता है ना, उसके पास वैसी स्किल्स है, स्किल्स सीखते रहोगे तो तुम डेवलप करते रहोगे। तुम एक एज, तुम एक स्टैचर पे जब पहुंचते हो तो तुमको पता होता है कि इस जूनियर को इस लेवल पे हमको शुरू से कैसे रखना है। अगर हम ऐसे नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, ये काम नहीं करेगा। एंड एक्सेप्टेड, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो हम डिलीवर करेंगे क्या उतनी एफिशिएंसी से? एग्जाम नहीं होता है तो पढ़ते हो रोज वैसे एग्जाम की तरह? नहीं पढ़ते हो ना। तो सीनियर किसी कारण से सीनियर होता है, वो उतनी स्किल्स, उतना नॉलेज, उतना एक्सपीरियंस से डेवलप हो चुका होता है। अब उसमें कोई जूनियर जिसको जो जानता ही नहीं है उस स्किल्स के बारे में, वो तुमको रेट करे तो उल्टा सीधा भी रेट कर सकता है ना। जितना समझोगे उतना ही तो रेट करोगे। दैट इज वन प्रॉब्लम। Okay, so with this we complete 360 degree appraisal. Next class we'll just quickly do bars, MBO and assessment centers.